Hello, my dear students. Hope you all are well. Students, we have completed till chapter 4. Now today we are going to start with a new chapter, that is chapter 5th, working with paint. This is not a new chapter for you all. We all have read in class 2nd also about paint. See students, MS Paint is a simple graphical program. Means it's used for making graphics, means for drawing pictures on the screen by using different features of MS Paint, by using different colors, by using different features. Now we will see some of the features of MS Paint. First one is it is used for creating picture, editing picture and printing that picture. Means it's also used for drawing. We can draw the picture. We can also edit it. अगर हम कुछ edit करना चाहते हैं उस picture में, we can also edit that picture. And if we want to take print out of that picture, we can also do with this MS Paint. Got it, class? Now the second one is, with the use of this program, we can draw different objects such as pictures, cartoon, maps. Means सिंपल थिंग इज दैट कि अगर हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं उसमें सारी चीज़ें आती हैं. अगर हम कोई पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, कोई पेंटिंग बनानी है, कोई कार्टून बनाना है, कोई मैप बनाना है, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग वट एवर वी वॉन्ट टू ड्रॉ, वी कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ दिस MS Paint. Got it, class? Now the last one is we can also use paint to view and edit scanned picture. Whatever the scanned picture is, whatever the picture which is already scanned by printer or we have got from email, मतलब जो भी scanned pictured होती है उसको भी हम उसमें edit कर सकते हैं MS Paint में. We will study in higher classes that suppose we are scanning some picture from that printer. And suppose we want to edit it, we want to crop it, or we want to add some more things in that, we can do it with the help of MS Paint. Got it, class? Now the first topic is how to open Paint. So listen the step carefully. First one, we have to switch on the computer. When we will switch on the computer, we will see on the left hand side corner there is start button. We have to click on that start button. Now the second step is to click on this all program. Got it, class? Now the third one is click on the accessories button. Now fourth is to click on the option that is paint program. Got it? Now one more shortcut step is that simply open the computer, switch on the computer, click on the start button and we can search all the programs and file over here. We have to click on this and we have to type it from the keyboard paint. We will directly open the paint option. Got it? When we will click on the paint, we will get this dialog box open. This is paint screen. See, different groups are there. This is tab. Now here is a quick access bar for undo or for redo the things. This is ribbon which contain different features. These are groups, colors of group, colors of paint, brushes. Got it, class? Now students, using tools. Suppose we are using a pencil tool or shape tool. Next step क्या होगा? हम select तो कर लिए, हमारा next step क्या होगा? Tools तो select कर लिए, यहाँ पे बहुत सारे tools के options होते हैं, tool bar होती है पेंट में, हमने tools पे click कर दिया. अब हमारा next step क्या होगा? The simple thing is the mouse pointer. We have already read what is mouse pointer and cursor. जो mouse pointer होता है, हमें उसको painting area में, this is painting area, हमें उस माउस पॉइंटर को पर्टिकुलर पेंटिंग एरिया में स्क्रॉल करना होगा.
अगर आपको पेंसिल से कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है, आपने पेंसिल पे क्लिक किया, सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, आप अपने माउस पॉइंटर को पेंटिंग एरिया में ले आओगे और उससे व्हाटएवर शेप यू वांट टू ड्रॉ आप ड्रॉ कर लोगे। गॉट इट क्लास? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ हियर शोन यूज ऑफ शेप्स टूल्स। नाम से ही पता चल रहा है कि शेप टूल्स, शेप्स का मतलब क्या होता है, इफ यू वांट टू ड्रॉ एनी शेप, लाइन, rectangle, triangle, oval or different shape, thunder shape is also there in paint feature. Many more shapes are there. कोई भी shapes draw करनी है, हम कैसे draw करेंगे? Simple है, आप shapes group में जाइए, वहाँ से कोई भी shape pick करिए। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, माउस के पॉइंटर को पेंटिंग एरिया में ले आएंगे और सिंपल उसको स्क्रॉल करेंगे और हम जो भी शेप क्लिक किए हैं वो हमें मिल जाएगा। वी कैन गेट दैट शेप इजिली। गॉट इट? अगर हमें कोई अपनी जो लाइन है, हम जो भी शेप होगा वो ऑफ कोर्स लाइन में ड्रॉ होगा। अगर हमें उस लाइन, जो भी लाइन है उसको हम चाहते हैं कि वो थोड़ा मोटा बने, थिकनेस मतलब इट्स अबाउट साइज एंड थिकनेस ऑफ द लाइन, वी कैन सिंपली रीसाइज फ्रॉम हियर। इट्स गिवन साइज ऑप्शन सी, हियर इज शोन द आइकन ऑफ साइज। हम यहाँ से साइज को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। गॉट इट? थर्ड थिंग इज, अगर हमें कलर, अब एक ही कलर पूरे, हम अपनी शेप को भी एक ही कलर का और बैकग्राउंड भी एक कलर का तो कर नहीं सकते, भाई दिखेगा ही नहीं हमने कौन सा शेप ड्रॉ किया। इफ यू वांट टू यूज 2 different colors, we can easily select that thing. First one is we have to click, if you want to color the background first, so first select, we have to change the color of color one, और हमने वहाँ से background yellow कर लिया। And the second one is if you want to color the shape first, so first select, we have to change the color of color one, और हमने वहाँ से background yellow कर लिया। And the second one is if you want to color the shapes, we can simply do it with the red color. Got it class? इससे पता चलेगा कि हमने कितनी बार अपने शेप्स को ड्रॉ किया है, हम डिस्टिंग्विश इजीली कर पाएंगे। गॉट इट क्लास? और हम कलर कहाँ से करते हैं? दैट इज सिंपल, दैट इज विद फिल ऑप्शन, हियर शोन द आइकन। गॉट इट क्लास? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर इज शोन use of color picker. See, color picker tool is a very useful tool to copy the colors of the existing object. जो भी कलर हमने किया है, सिंपल चीज़ है कि हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अरे इट्स वेरी सिंपल, हम डायरेक्ट विद कलर से ही कर लेंगे। बट सी स्टूडेंट्स, समटाइम दिस इज द रेड कलर, समटाइम हमें कुछ ऐसा कलर मतलब चाहिए होता है, लाइक सैप ग्रीन मीन्स विच इज जस्ट, सैप ग्रीन इज अ कलर ऑफ रियल ट्री। जो ट्री का कलर होता है ना, रियल ट्री का कलर, वैसा सैप ग्रीन कलर होता है। हमें अचानक मतलब हम जब जाते हैं ना, बोलते हैं ना कि जो डिफरेंट रेनबो वाली ऑप्शन रहती है, वहाँ से हम अलग सेलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर सैप ग्रीन कलर को, और हम चाहते हैं कि वही कलर हमारे बाकी भी कोई चीज़ हमने पेंटिंग बनाई है, हम चाहते हैं कि वो भी कलर सेम रहे। तो फिर हम क्या करेंगे, और हम ज़रूरी नहीं होता कि हम हर टाइम उसी कलर को सेलेक्ट कर पाएँ। तो क्या एक ऑप्शन हमारे पास MS पेंट रखता है जो बहुत अच्छा फीचर है, वो होता है कलर पिकर। हम उस पर्टिकुलर कलर को पिक करके विद आइकन इज दिस, सी ये आइकन होता है, इस आइकन पे क्लिक करके हम उस कलर को उठा के दूसरे कलर पे डाल सकते हैं। गॉट इट क्लास? नाउ द नेक्स्ट फीचर दैट इज सेलेक्ट टूल। सी स्टूडेंट्स, कभी हम पेंटिंग बना रहे होते हैं और हमें ऐसा चाहिए होता है कि यार इस पर्टिकुलर चीज़ की आईज ना थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब थोड़ी डिफरेंट बन गई, एक की आँख बड़ी बन गई, एक की आँख छोटी बन गई। तो हमें क्या, जो सही साइज की है उसको तो वही छोड़ देते, जो दूसरी आईज होती है हमें उसी को बस हटाना रहता है। तो मतलब इरेजर से क्या पता इधर उधर हो जाए, तो मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ को हटाने के लिए वहाँ से
अगर हमें उसमें पर्टिकुलर चीज़ में कोई चेंजेस करने होते हैं, सो वी हैव ऑप्शन दैट इज सेलेक्ट ऑप्शन। हम जब सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, मीन्स जो भी सिलेक्शन होगा वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, ठीक। सेकेंड वन इज एज द आइकन शो हियर, दिख रहा है यहाँ पे रेक्टेंगल शेप का है और आइकन ही बना हुआ है, उसी शेप में कट जाएगी पिक्चर। सेकेंड वन इज फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल, मीन्स कोई भी शेप, टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा शेप, कोई भी शेप का कट के, मतलब नोज, यहाँ पे नोज काटी है मिकी माउस की, तो नोज किसी भी शेप में कट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। इर्रेगुलर शेप, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर क्या है हमारा, रेगुलर शेप है। उस पर हमें क्या करना होगा, मान लो हमें आईज हटानी है, यहाँ पे तो नोज हटाया है, आईज हटानी है, आईज पे कैसे क्लिक किया, ये रेक्टेंगुलर शेप का कटा, फिर हम यहाँ पे वो उसको होल्ड डाउन करेंगे और ड्रैग करके बाहर के एरिया में लेते आएंगे। फिर हमें जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है हम उसमें सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वैसे अगर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन एरिया करेंगे तो वो किसी भी इर्रेगुलर शेप का आ जाएगा। Now we will see a new topic that is moving an object। अगर कोई ड्राइंग हमने बनाई है और उसको हम मूव कराना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि हमने MS वर्ड में पढ़ा था कि हम कोई पर्टिकुलर मतलब लिख रहे हैं कुछ और उसमें हम चाहते हैं कि ये वर्ड यहाँ नहीं कहीं और लिखा जाए, मतलब कट कॉपी पेस्ट, हमने MS वर्ड में पढ़ा था ना, द सेम थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस, कि अगर हमें कोई ड्राइंग बना रखी है उसको हमें कट करना है तो हम क्या करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप, लिसन टू मी केयरफुली, फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू select the particular drawing with the help of select tool। select tool के बारे में हमने पढ़ा था यहाँ पे हम यूज करेंगे rectangular selections tool for selecting it। फिर select करने के बाद जब ये select हो जाएगी तो क्लिपबोर्ड से हमें कट का ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे ये पर्टिकुलर पिक्चर कट हो जाएगी, ठीक। फिर हम उस पिक्चर को कट कर लिए, अब हम चाहते हैं कि ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में या फिर यहाँ पे आप कहीं पे भी लोकेट करना चाहें, हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, पेस्ट का, ठीक है, समझ गए क्लास। अब बारी आती, ये तो हो गया कट और पेस्ट। अब कॉपी और पेस्ट कैसे करेंगे। कॉपी के लिए भी सेम थिंग करते हैं, पहले हम सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉपी कमांड का यूज करते हैं, कॉपी करते हैं और उसके बाद उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सारे ऑप्शंस कट कॉपी पेस्ट के सारे क्लिपबोर्ड पे प्रेजेंट होते हैं, होम टैब पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे अब ड्राइंग डिफरेंट शेप्स। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि कोई भी डिजायर्ड शेप हम ड्रॉ करना चाहते हैं हम ड्रॉ कर सकते हैं, वेदर इट्स लाइन, कर्व, ओवल, सर्कल, ट्रायंगल, या उसकी थिकनेस, उसकी आउटलाइन की जो थिकनेस है, या फिर हम विदाउट आउटलाइन चाहते हैं, जैसा डिजायर्ड शेप हम चाहते हैं हमारे पास रेडीमेड शेप्स के ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं। उसमें हम कलर्स फिल कर सकते हैं, क्रेयॉन से कलर कर सकते हैं, व्हाटएवर वी वांट टू डू विद कैन डू विद द शेप्स। नाउ फ्लिपिंग द पिक्चर। फ्लिपिंग द पिक्चर क्या मतलब क्या होता है कि अक्सर मान लो आप मोबाइल की बात कर रही हूँ मैं, मोबाइल फ़ोन में आपके पास कोई पिक्चर होती है जो आप अक्सर स्टेटस या फिर कुछ लगा रहे होते हो फ़ोन पे, तो फिर आप चाहते हो कि ये ना फोटो थोड़ी सी रोटेट सी हो जाती, मतलब एक अलग एंगल में हो जाती, तो ये ज़्यादा बेटर लगती। यही होता है फ्लिपिंग द पिक्चर का काम, मतलब ये पिक्चर को रोटेट करता है, ठीक है। उसको डिज़ायर मतलब हम कोई इफ़ेक्ट बोलते हैं ना, इफ़ेक्ट एक तरह का लाता है, ये हम जिस शेप में चाहें उस शेप में ये रोटेट हो सकता है। नाउ ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ से आता है, हम कैसे इसको रोटेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेलेक्ट, हम उस पर्टिकुलर पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, होम टैब में जाके इमेज का जो ग्रुप होता है उस पर क्लिक करके हम जाएंगे रोटेट के ऑप्शन पे, वहाँ पे हम जिस डिजायर्ड शेप पे रोटेट करना चाहते हो
थोड़ा चाह रहे हो कि ये कार थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो जाती तो ऐसा लगता है कि स्लाइड डाउन हो रहा है नीचे, हम ऐसा ब्राउन कलर का सड़क बना दें तो फिर ऐसा इफेक्ट जाए। मतलब हम जिस डिज़ायर्ड शेप में करना चाहते हो, जिस डिज़ायर्ड डायरेक्शन में करना चाहते हैं, हम उसे फ्लिप कर सकते हैं। नाउ वी कैन ऑल्सो रिसाइज आवर पिक्चर। हम अगर पिक्चर को की साइज बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, वो भी हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। पहले हमें जो ड्राइंग है उसको सेलेक्ट करना होगा, फिर रिसाइज ऑप्शन कहाँ मिलेगा हमें, इमेज ग्रुप में होम टैब पे, ठीक है। वहाँ पे परसेंटेज दिया होता है, हम उस परसेंटेज को सेट करके अपने पिक्चर्स को हम रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करने के बाद हम ओके बटन दबाएंगे, हमारा पिक्चर वहाँ से रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग टेक्स्ट टूल, अक्सर हमें मोबाइल में भी हम ये फीचर कोशिश करते हैं कि मतलब हमारा ना जो पिक्चर हो उस पर कुछ लिखा, मतलब हम कुछ रिटन भी चाहते हो, रिटन कुछ ड्राइंग बनाते हैं, हम चाहते हैं उसमें कुछ रिटन फॉर्म्स भी हो। अक्सर प्रोजेक्ट या फाइल्स बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि मतलब कुछ रिटन फॉर्म में भी होती है। ये पेंट में ये ऑप्शन रहती है। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, होम टैब में ए बन के ये आइकन याद रखना, ये ए का जो आइकन होता है इसको क्लिक करने पे एक आपको पर्टिकुलर एरिया मिल जाता है ड्राइंग एरिया के बीच में, कि आप इस पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, किसी भी फॉन्ट में, किसी भी स्टाइल में, किसी भी साइज में। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, ठीक है। बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, व्हाटएवर स्टाइल यू वांट टू यूज, वी कैन यूज इट, ठीक है क्लास। ये जो ऑप्शन होता है ये बहुत ज़्यादा काम आता है हमारे, क्यों, बिकॉज अक्सर हमें जो अगर हम अपना प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं और उसको क्रिएटिव करने के लिए ये जो हमारा फीचर MS पेंट का होता है ये काफ़ी हमारी हेल्प करता है प्रोजेक्ट को ज़्यादा क्रिएटिव बनाने में, कि हम पेंटिंग के साथ अगर हम कुछ ड्राइंग्स पिक्चर्स लगा रहे हैं तो उसके साथ हम अपना टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट क्लास? सी दिस ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट इन पेंट का फीचर क्या होता है, ये हमारी जो राइटअप्स होते हैं, जो भी हम लिख रहे हैं उसको ब्यूटीफाई करने के लिए होती हैं। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट हमने जो लिखा है, मतलब ड्राइंग एरिया में हमने जो लिखा है वो एक ओपेक फॉर्म में है, मतलब एक उसका डिफरेंट बैकग्राउंड कलर हो, जो राइटअप है उसका और ड्राइंग का डिफरेंट बैकग्राउंड कलर हो। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, हमारा जो टेक्स्ट है अगर हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमें ओपेक का ऑप्शन क्लिक करना होता है। ओपेक का ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे हमें जो कलर 2 होता है, कलर टू का कलर जो है, जो भी व्हाटएवर वी वांट टू मतलब डू इट, हम जो भी कलर रखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू इट विथ रेड तो रेड कलर कर लिए। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट के आसपास का जो एरिया है ये जो है रेड हो गया है और बैकग्राउंड का कलर हमारा ग्रीन है। गॉट इट? और अगर हमें इसे ट्रांसपेरेंट रखना है, मतलब सेम कलर बैकग्राउंड के रखना है और जो राइटअप है उसको चेंज करना है, तो ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए कलर 1 का कलर चेंज करेंगे और जो टेक्स्ट है वो रेड हो जाएगा और बाकी का एरिया हमारा ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। गॉट इट क्लास? आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ जूमिंग द पिक्चर, दिस इज वेरी कॉमन थिंग कि हम अगर कोई पिक्चर रहती है हमारे मोबाइल फ़ोन में तो हम जूम करके ज़रूर देखते हैं। तो पेंट में भी ये ऑप्शन है कि आप कोई भी पिक्चर जूम करके देख सकते हो। उसके लिए क्या यूज़ होता है, मैग्नीफायर, ठीक है, मैग्नीफायर का यूज़ होता है। ऑल्सो एक जूम इन जूम आउट का भी यूज़ होता है, जो कि हमारे उस पर व्यू टैब पे मिल जाएगा आपको, कि व्यू टैब पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा जूम इन। जूम इन मतलब साइज इंक्रीज होगी, आप एकदम जूम करके। जूम आउट मतलब साइज डिक्रीज होती जाएगी। जूम टू 100% मीन्स
द पिक्चर विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल साइज। नॉर्मल साइज में पिक्चर वापस आ जाएगी। समझ गया आपने? अब आती है सेटिंग अ ड्राइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सर हम लोग की ड्राइंग इतनी प्यारी सी बन जाती है, जैसे कार्टून वार्टून बना रहे हो, अच्छा सा बन गया ड्राइंग, तो हमें ये होता है कि हमें अपने डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड लगा देते हैं। तो ये कहाँ से हम सेट कर सकते हैं? सो फर्स्ट स्टेप इज टू क्लिक ऑन द पेंट बटन। पेंट बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन होता है सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, वहाँ पे क्लिक करेंगे हम और हम मतलब वहाँ पे पर्टिकुलर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पे सेलेक्ट एनी ऑफ द 3 ऑप्शन फिल, टाइल और सेंटर फ्रॉम द सेट एज डेस्कटॉप पैनल। फिल, टाइल और सेंटर एक सेट्स होते हैं, इस पर किसी भी क्लिक करोगे तो आपको आपका जो डेस्कटॉप पैनल पे आपका वो जो बैकग्राउंड है उस पर आपकी पर्टिकुलर ड्राइंग आ जाएगी। ठीक है। नाउ फॉर क्रिएटिंग अ न्यू ड्राइंग, आपने एक ड्राइंग बना ली, अब एक नई ड्राइंग बनाना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, न्यू ऑप्शन, पेंट बटन पे क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने से एक नई डॉक्यूमेंट खुल जाएगी जहाँ पे आप एक नई ड्राइंग बना। ठीक। फॉर सेविंग, ड्राइंग बना ली, अगर आपको सेव करना है तो आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे? पेंट बटन पे जाओगे, वहाँ पे आप सेव ऑप्शन पे जाओगे, सेव एज करोगे, फाइल का नेम डालोगे, सेव बटन दबा के सेव कर दोगे फाइल को। ठीक है। कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं इसके लिए, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज पेंट बटन पे जाके मतलब ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो फिर हमें शॉर्टकट कीज जाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शॉर्टकट कीज में पहला हमारा शॉर्टकट कीज फॉर क्रिएटिंग द न्यू ड्राइंग। एक नई ड्राइंग बनाने के लिए हमें कौन सा बटन यूज करना होता है? Ctrl+N। ठीक है। फॉर ओपनिंग एन ओल्ड फाइल, पुरानी कोई फाइल है हमारी ऑलरेडी बनी हुई, उसको हमें खोलनी है तो Ctrl+O। ठीक है। और अगर फाइल सेव करनी है तो Ctrl+S। ठीक। टू क्लोज द पेंट प्रोग्राम, पेंट का प्रोग्राम जो पेंट प्रोग्राम हमने खोला है MS पेंट, उसको क्लोज करना है तो Alt+F4। ठीक। I want that you should remember all these shortcut keys, क्योंकि ये हमारे काम को बहुत ईजियर बनाती हैं। ठीक है। ओपनिंग एंड ओल्ड ड्राइंग मैंने पहले बता दिया कि अगर कोई ऑलरेडी ड्राइंग बनी हुई है और हम उसको खोलना चाहते हैं तो पेंट बटन पे जाके ओपन ऑप्शन भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+O। वहाँ से जो भी फाइल नेम है सर्च करिए, वहाँ से आपको ओपन करने की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है। So class, I hope this chapter is clear to each one of you. This chapter is little bit lengthy, but try to understand it properly. आप एक बार वीडियो देखने के बाद भी वापस से रीड कर लीजिए, ताकि आपको जो पर्टिकुलर एक एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो एकदम क्लियर समझ में आ जाए। ओके क्लास, so thank you class, have a nice day ahead.